परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराप सेंगपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत का सबसे खूबसूरत और समृद्ध सीमांत इलाका। जितनी मनमोहक यहाँ की पावन धरती, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की संस्कृति। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक खूबसूरती के अलावा भी एक अनमोल खजाना है। वो है भगवान बुद्ध के ज्ञान और उनके दर्शन पर चलने वाले बुद्धिजीवियों, धर्मावलंबियों का अपार विस्तृत खजाना। पूरे अरुणाचल प्रदेश में भगवान बुद्ध का ज्ञान फैला है और बौद्ध धर्म की इसी पावन धरती पर पधारे हुए हैं परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे। परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे अपने इस दौरे के अवसर पर इस समय पधारे हैं बॉमडीला में। आप देख सकते हैं कि परम पूजनीय की एक झलक पाने को और उनके आशीर्वाद को हासिल करने के लिए कैसे लोगों में होड़ मची हुई है। परम पूजनीय भी लोगों को निराश नहीं करते और सभी को आशीर्वाद देते हैं। लोगों को आशीर्वाद देने के बाद परम पूजनीय प्रवेश करते हैं मठ में स्थित मंदिर में। व्यस्ततम दौरे के दौरान अब घड़ी आती है सूक्ष्म जलपान की। इस दौरान चुनिंदा मानिंद लोगों के साथ परम पूजनीय जलपान ग्रहण करते हैं। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे की अरुणाचल यात्रा को। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। नमस्ते। 23rd January 2011 Sunday, 19th lunar day of the 11th month. The elemental combination is fire and fire, which is a good combination, and such combination gives prosperity, encourages the gaining of food and clothing, good for trade, planting seeds, and praying for wealth, God, and do involve in meritorious deeds. It's special a good day for people who are born under dragon years, since it is secure, avoid undergoing any toxic or surgical works, and it is also not a good day for observing prayers for the deceased one. In addition, the Lord of Earth or Sada Simbung moves from south to north direction in the evening, thus undertaking journeying or starting or important work from south to north direction during evening is not a good. Pomdong or empty was is at its direction, so
Important works should not be done while facing eastward. 24th January 2011, Monday and 20th lunar day of 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is fire-water, which is a bad combination and brings death, unfavorable for peaceful undertaking, but it is negative. It is more favorable for negative activities such as killings, concocting poisons. Cursing will be more forceful. However, the elemental combination will be changed from 1 p.m. and it will be water wind, which is also an inauspicious combination and brings disharmony and separates from friends and relatives. Therefore, don't believe in rumors and gossips and cope well with your friends and relatives to prevent separation from them. And it is Chi Nambu, so not an auspicious for almost all the important works. This day is especially favorable for people of dog years, and Pomdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. 25th January 2011, Tuesday and 21st lunar day of the 11th month. The elemental combination is fire-wind, which is an auspicious elemental combination. It indicates good luck, favors for accumulation of energy and power, good for performing religious ceremony and praying to the god, auspicious for hosting prayer flags and carrying out different peaceful activities. This day is especially good for people of horse and snake, and BT starts from 11 a.m. until 8 p.m. from south to east direction, so wrathful activities are forceful while undergoing accessory therapy such as bloodletting and Moses brushing need to be avoided. And since it is drawing in number, so avoid inviting any guests at home. And Pumdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channel at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में अनेक प्रकार की जातकाएं आते हैं। अपने शरीर से लोगों के दुख हटाया, अपने मत से अपने प्राण से लोगों के दुख हटाया, तो वो दुख हटाने की कार्य करने वाले जातक कथाएं जो आता है तो उसको बुद्ध सत्व कहलाती हैं, भगवान बुद्ध नहीं कहलाते हैं। वो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों का वो कथा है। अभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुए हैं, बुद्ध सत्व चर्या का वो अभ्यास कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उस समय की बात है। जैसा भूखी शरीर को देखा, वो तत्कालिक के दुख भूख है और उस तत्कालिक भूख के कारण अपने शरीर से उत्पन्न हुए संतान को भी खाद्य सामग्री के रूप में वो लेने के लिए तत्पर हो गया है। और अगर वो अपने बच्चे को खा लेते हैं, उससे जो आकुश कार्य संपादित करेंगे,
जिसके कारण वो और आगे अनेक जन्मों में नरक आदि में दुख भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार के समस्त जगत में कितने दुखी होंगे, उन सब के दुख निवृत्त करने के लिए मैं अपने प्राण त्याग करके ये नश्वर शरीर इस भूखे शेर का भोजन के रूप में, बच्चे के रूप में हम दे देंगे, तो यह दान पारमिता की भी साधना है और करुणा के साधन तो है ही है, महाकरुणा की साधना है। और वो केवल अपने प्रत्यक्ष अवलंबन भूखे श्रेणी नहीं है, समस्त दुखी जगत उनके अवलंबन में है। 17 श्लोक के एक परिनिधान है, वो 17 श्लोक का परिनिधान सत्य शतक परिनिधान है। वह ऐसा माना जाते हैं जब उन्होंने अपने शरीर को भूखे शेरनी को दे रहे थे तो परिनिधान उन्होंने बोला दिखा गया है। तो उससे देखेंगे तो भूखे शेरनी तो मात्र एक प्रत्यक्ष अवलंबन है, परंतु उनकी करुणा की अवलंबन में समस्त सत्व मात्र उनके अवलंबन में है, तो इसलिए वो महाकरुणा की प्रकाश कहा जा सकता है। मैं आपकी प्रश्न को लेकर के सरलता से समझने वाले 2 बातें कहूंगा। और पहला बात तो ये कि मन की चंचलता और मन के अकुशल प्रवृत्तियों को अंकुश करने के प्रयास मात्र नहीं करना चाहिए। आपने ये शब्द अंग्रेज का शब्द प्रयोग किया कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो आप एक नए द्वंद में फंस जाएंगे। इसका निर्मूल करना है। कंट्रोल और कंडीशनिंग किस चीज को कहीं दबा करके रखना, कहीं उसको परिवर्तित करके रखना, उसको कंट्रोल कहते हैं। और किस चीज को बीज सहित निकाल देना है, नष्ट कर देना है, तो वो कंट्रोल करने के प्रयास से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप पूजा में बैठे हो, ध्यान में बैठते हो, आप बैठते हैं तो आपके मन में बहुत सा कुशल अकुशल और अव्यकृत विचार आने लगता है, और उन विचारों को आप भगा करके फिर एकाग्र करने की प्रयास करेंगे तो आपकी सारे प्रक्रिया एक द्वंद के रूप में, एक संघर्ष के रूप में बीत जाएगा। परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो भी विचार आते हैं तो उस विचार को देखना चाहिए। कुशल अकुशल जो भी विचार आते हैं या मन इधर उधर भटक जाते हैं, भटक कर ही जाते हैं, विचार आते हैं, कल्पना आते हैं तो भटक जाते हैं। उस कल्पना को एक साक्षी भाव से देखना चाहिए, उसको एकदम सामने से देखना चाहिए। साक्षी भाव मैं इसलिए कह रहा हूं,
आदमी किस चीज को देखते हैं तो उसमें अनेक प्रकार भाव उठते हैं। कुछ कर्ता भाव से देखते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ। कोई लिख रहा हो तो आप देखते हैं कि मैं लिख रहा हूँ। अब लिखन को देखने की भाव होता है वो कर्ता भाव से। आपके शरीर में दर्द हो रहा है या आनंद का अनुभूति हो रहा है, आप उसको देखते हैं तो आप तटस्थ नहीं होता, आप भोक्ता भाव से देखते हैं। भोक्ता भाव से देखते हैं तो आनंद की वेदना को, संवेदना को और अधिक बढ़ाने की और समय तक रखने की इच्छा होते हैं। और अप्रिय वेदना होता है, दर्द होता है तो उसको तुरंत चला जाए इस बात देखते हैं। तो आप कर्ता भाव बना रखें और भुक्ता भाव बना रखें। साची भाव से अपने विचारों को देखें, सीधे देखें। अंग्रेज में अनकंडीशनड ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, अनकंडीशनड माने आप कर्ता और भुक्ता भाव से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक थर्ड पर्सन के रूप में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखेंगे जो भी मन भटकता है, जहाँ भटकता है तो वहाँ आप देखना शुरू करें। तो वह जितना भी भटका है, जितना भी कल्पना परिकल्पना संकल्पना आते जाते हैं, उन सबको देखने से वो अपने आप हट जाता है। अपना आप हट जाता है तो पहले के अवलंबन पर मन वापस संप्रज्ञानी के माध्यम से या स्मृति के माध्यम से वापस लाया जाता है। तो वो वापस लाएंगे और फिर आपका ध्यान ठीक हो जाएगा। ये तो एक आपके प्रश्न की प्राथमिक दृष्टि को देखते हुए मैंने ये उत्तर रूप में कह दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगर आप ध्यान करते हो तो जिस पद्धति की ध्यान करते हो उस पद्धति की गुरुओं से, मार्गदर्शकों से पूछना चाहिए। ध्यान करने का काम सरल नहीं है। वो केवल किताबें पढ़ करके ध्यान करने से आपका ध्यान स्थिर नहीं होगा। अभी मैंने जो आपको कह दिया है वह एक पद्धति है, एक थ्योरी है, और इस तरह की थ्योरी हर मनुष्य पर सामान्य रूप से लागू नहीं होता है। हर आदमी को अपने अपने पद्धति या थ्योरी खोजना पड़ता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ते हैं, मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ते हैं, ग्रंथों का भी आवश्यकता पड़ते हैं। तो अध्ययन करें, लोगों से पूछें। एक सामान्यता जो थ्योरिटिकल उत्तर है वो मैंने दे दिया, लेकिन उससे अगर आप सचमुच ज्ञान करने वाले हो तो उससे आपका काम पूरा नहीं करेगा। उसके लिए निरंतर गुरु की सानिध्य की आवश्यकता है।